Hello everyone, welcome to one more episode of Top 100 Geometry Questions, and these questions are of course very important from your exam point of view, and if you have missed the earlier parts you can find the link in the description box. So we have the first question that we have to draw the figure, redraw the figure actually. So we have a triangle A, B, C, and in this triangle this point CP, and there is a line which is called PO then OD, right? From the information we can see this PO is parallel to AC, right? So PO is parallel to AC and OD is parallel to CP, right? This is OD is parallel to CP एंड बाकी इसका ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा उसके बिना भी, राइट? बाकी फालतू दे रखा है, ठीक है। मुझे जो बात बतानी है वो ये है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC एंड यहाँ पे आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट? दिस इज DE। तो इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो ये है कि लेफ्ट साइड का रेशियो AD to the DB should be equals to corresponding side on the right hand side, ये important है। और if you want to take AD का रेशियो AB के साथ में then corresponding on the right hand side the same part will be AE ratio AC। so this is most important while we are solving question जहाँ पे triangle है उनके अंदर parallel lines, right? अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, that is AP का रेशियो PB के साथ में, this is 4:3, so this is 4K, so this length is complete 3K, right? Okay, and बस ये आपको given है, right? तो one thing I would like to tell you, right? So if we consider the point P and PO is parallel to this base AC, so I can say this ratio should be, that is CO, and this is OB, it should be 4:3, 4Y or 3Y, right? Because on the left hand side, on the right hand side, same ratio should be maintained. And if I consider the point D, so you can see this OD is parallel to CP, right? So if I try to make this separate figure this way, this is D point, this is O point, this is C point, this is P point, and this is B point, right? So you can see on the left hand side or on the upside the ratio is 4:Y. So I can say on the bottom side also this ratio should be 3K and 4K. We have to change the alphabet, or rather than K we can take 3X and 4X, right? तो ये होना चाहिए, क्लियर? तो आप ये बोल सकते हैं जो PD वाला पार्ट है ये 4X होगा और ये दोस्तों 3X होगा, राइट? बट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो 4X प्लस 3X है ये तो एक्चुअली 3K के इक्वल है लेंथ वाइज, तो आई कैन से 7X का वैल्यू 3K के इक्वल है, राइट? समझ में आता है? तो यहाँ से x अपॉन K का जो वैल्यू है वो 3/7 है, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AP रेशियो PD, राइट? तो आपको AP रेशियो PD कैलकुलेट करना है। सो AP इज 4K एंड PD इज एक्चुअली 4X, so there is no use of 4, so K कॉमा या K रेशियो X, तो K रेशियो X शुड बी, अगर हम K रेशियो X करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7:3, तो 7:3 इसका अल्टीमेट सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई करो, मजा आएगा, चैलेंज देखना इसमें क्या है, राइट? तो क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास वो येलो कलर का रीजन है ना, उसका एरिया फाइंड आउट करना, राइट? तो इसी फिगर में समझा देता हूँ। तो देखो ये जो ट्राइंगल है इसका ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 13 होगा, वाई? बिकॉज दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर 13। So there is a very famous triplet, 5, 12, 13. This is 12, this is 13, so this has to be 5 by the Pythagoras theorem, 5, 12, 13. So I can say this is going to be 5, right? ये 5 हो जाएगा, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से बना, यहाँ पे बना, तो ये जो लेंथ है ये 5 हो जाएगी, राइट? क्लियर है? ऊपर वाला लेंथ 5 हो जाएगा, राइट? दिस लेंथ, हाँ, दिस इज लेंथ इज 5, राइट? चलिए अब थोड़ा सा आपको कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल है या एक से ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राई टू यूज सिमिलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो
ये एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल, दिस एंगल इज 90, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। ये 90 है, तो this complete angle should be 180, so from that I can say this angle is theta. So this is 90, then this has to be 90 minus theta. So once you get this, the question is done. Question is done and dusted, right? So this is 12, complete length is 12, so this is 5, then this has to be 7, so I can say this has to be 7, right? तो ये जो स्क्वायर है इसकी ये वाली साइड 5 है, ये ऊपर वाला, तो ये 7 है, और यहाँ पे ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा। तो अगर दो डिफरेंट ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होता है, कितनी बार मैंने आपको सिखाया है, राइट। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी फॉलो करेंगे। थीटा के सामने इधर 5 है, इधर थीटा के सामने x ले लेते हैं, इधर 90 माइनस थीटा के सामने 12 है, इधर 90 माइनस थीटा के सामने 7 है। फ्रॉम दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली। सो x इज 35/12। तो once you got the value of x, then area is nothing but half into base into height. So base is, I can say, x, 35/12, and height is 7, so 245/24. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर डाउन हो गया बैटरी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और खूबसूरत सवाल, एक और बेहद खूबसूरत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। अगर आप ज्योमेट्री से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन पसंद है, तो ये आपको अच्छा खासा चैलेंज देने वाले, राइट। और सॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, राइट। तो इस सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, कोई भी शेप का, है ना, शेप ABCD, तो आपने इसके डायगोनल ज्वाइन कर दिए। अगर इसका एरिया दोस्तों A1 है, इसका एरिया A2 है, तो जो साइड वाले ट्राइंगल है उनका एरिया A1 A2 का प्रोडक्ट होता है रूट के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो डायरेक्टली। हाँ, मतलब ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं, राइट। ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसी प्रोसेस को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजती है तो, राइट, अब घंटी कैसे बजेगी उस पर बात करते हैं, राइट। इसको नोट कर लो। तो मैं इस फिगर को एक बार रीड्रॉ करता हूँ। ये दोस्तों ऐसा है और ये दोस्तों ऐसा है, ठीक है। ये आपको FECD राइट, ये निकालना आपको, है ना, ऐसे निकालना है। तो मैंने बस एक कोशिश ये करी कि क्यों ना मैं AB को ज्वाइन कर दूँ। तो जैसे ही आपने AB को ज्वाइन किया, क्वेश्चन खत्म है अगर आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा है, राइट। देखो EFC का, अच्छा आपको निकालना क्या है वैसे, अच्छा ओके, EFC का एरिया गिवन है, आपको निकालना है इसका, आपको एरिया निकालना है ADEF का। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल ADEF का, राइट, इसका एरिया निकालना है, कोई बात नहीं। तो इसका एरिया 4 है दोस्तों, है ना, इसका एरिया 4 गिवन है आपको। एंड एरिया ऑफ BFC इसका एरिया 5 गिवन है, ठीक है। इसका एरिया दोस्तों 5 गिवन है, ऐसा। तो इसका एरिया 5 है तो इसका भी 5 हो जाएगा, डन हो गया भाई, अभी तो बताया था आपको। तो 5 और इसका एरिया कितना होगा, 5 × 5 का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 4 × हाँ, एक और बात ना, जैसे आपने ट्रेपीजियम तो बना ही लिया था, तो जब आपने दोस्तों ट्रेपीजियम बना लिया तो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। आप ये कह रहे हैं इसका एरिया A1 A2 का रूट होगा और इसका एरिया भी A1 A2 का रूट होगा, स्क्वायर रूट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट A1 A2 का स्क्वायर रूट इंटू A1 A2 का स्क्वायर रूट। सो डोंट यू थिंक कि इनके इक्वल आएगा A1 A2। तो रूल ये है कि अगर आपके पास ट्रेपीजियम है तो आमने सामने के जो एरियाज हैं उनका प्रोडक्ट करके आपको इक्वल मिलता है, राइट। तो आई कैन से इसका अगर मैं एरिया को x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये 4x हो जाएगा। तो 25/4 बराबर x, इसका मतलब ये 6.25 हो जाएगा।
तो इसका एरिया 6.25 आ गया, राइट। समझ में आ गया, राइट। अब दोस्तों एक रेक्टेंगल के अंदर भी खास बात है कि अगर आपने रेक्टेंगल के डायगोनल को ज्वाइन कर दिया तो ये ट्राइंगल जो बनेंगे दो, उनका एरिया इक्वल होगा। तो आप ये देख रहे हो कि इसका एरिया 5 और 6, नीचे वाले का 11.25 है, तो ऊपर वाले का भी 11.25 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये 5 और 4 है 9, तो ये एरिया कितना बचेगा भाई? ये 5 है 4 है, तो ये 2.5 होगा, नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 5 4 9 और 2 11। क्लियर हो गया? अब आपसे बोलता है ए डी ई एफ जोड़ लो। भैया ये 5 है, ये 2.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7.5। इससे आसान सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सॉरी, ये 2.11 है ना, 11.25 है। हाँ, तो ये 2.25 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन एरर हो गया था, बी करेक्ट है। हाँ, 7.25 हो जाएगा, 5 और 2। तो इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। देखना, आपको मजा आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फिगर रीड्रॉ, मतलब फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा इसका। बोलता है आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ABC, right? And DEF are 3 point on the side BC and half. तो BC पर है और CA पर है और AB पर, राइट। सच दैट BD का रेशो दिस इज 3:4, CE रेशो BC, BD रेशो CD और CE रेशो CA ये 2 है, तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि आपको CE का रेशो CA के साथ में दे रखा है। तो ये 2 आपको 9 दे रखा है, इसका मतलब CE का रेशो AE के साथ में 2:7 हो जाएगा। ये कंप्लीट 9 है, राइट। ठीक है, और आपको AF का और AB का रेशो निकालना है। ट्राई करिए इसको, मजा आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक थ्योरम होती है दोस्तों, सीवास थ्योरम। हाँ, सीवास थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम तो ये बोलती है, अरे भाई थ्योरम लिख जा। हाँ, तो ये बोलती है कि आपके पास अगर ट्राइंगल है और आपने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, ऐसे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया ABC, इनको DEF ले लेते हैं, राइट। तो नियम ये बोलता है कि आप यहाँ से शुरू कर दो, AD अपॉन BD का प्रोडक्ट BE और EC, प्रोडक्ट CF और AF, ये हमेशा 1 आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे AF अपॉन FB इंटू 3/4 इंटू 2/7 शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से AF अपॉन FB कितना आ जाएगा भाई? 7 चौके 28 और 2 तिया 6, तो 14/3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राइट। मज़ेदार हैं सारे रिजल्ट्स। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। आपको यहाँ पर AO का लेंथ निकालना है, क्योंकि जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग AO का लेंथ निकालना, मैं आपको OE भी निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। एक यहाँ पे थ्योरम होती है मास पॉइंट ज्योमेट्री। मैंने डिटेल में पढ़ाया है मास पॉइंट ज्योमेट्री, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। ऐसा है कि मान लेते हैं आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और आपने यहाँ पर एक वेट बैलेंस कर दिया, राइट। मान लेते हैं यहाँ पर एक राजू है जो 20 किलो का है और यहाँ पे एक रवि है जो 15 किलो का है। तो इसको हमको बैलेंस करना है, राइट। तो बैलेंस करने के लिए ये जो लेंथ है L1 और ये जो लेंथ है L2, ये किस रेशो में होने चाहिए जिससे कि दोनों बैलेंस हो जाए, राइट। तो सवाल ये है, इसका रूल ये है कि 20 का मल्टीप्लाई L1 के साथ में शुड बी इक्वल्स टू 15 का मल्टीप्लाई L2 के साथ में। तो यहाँ से आप L1 L2 का जो रेशो निकालोगे वो 15/20 और आई कैन से 3:4। तो आप इस बात को डायरेक्ट भी बता सकते हो, कैसे कि जो इसकी ये जो 20 है ये इधर लेंथ इसकी चली जाएगी और 15 है ये वेट इधर चले जाएगा। मतलब अगर मुझे L1 L2 निकालना है तो L1 के साथ में जो वेट आएगा 15 आएगा और L2 के साथ में जो वेट आएगा वो
20, तो 3:4 आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं सोल्यूशन करता हूँ, राइट। तो सोल्यूशन ही बोलता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है और ये आपके पास इस तरह से एक फिगर दे रखी है, ठीक है। दिस इज ए बी सी डी ई ओ, ऐसा, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पे 7 है, ये 5 है, ठीक है। तो आपको वेट बैलेंस करना है, राइट। तो ध्यान रखेंगे वेट बैलेंस करते समय उस पॉइंट को पकड़िए जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस मीट करती हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन मीट करती हैं, तो यहाँ पर वेट बैलेंस करते हैं, राइट। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो वेट आएगा 4 के हिसाब से आएगा और यहाँ पे जो वेट आएगा इसके, अगर इस लाइन सेगमेंट को देखेंगे तो 5 के हिसाब से आएगा, है ना भाई। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो वेट आएगा अपोजिट सेगमेंट, ये वेट इधर आएगा और ये वेट इधर चलता है, ऐसे क्रॉस में चलते हैं, राइट। तो आपको एक ऐसा कॉमन वेट लेना चाहिए जो 5 और 4 का मल्टीपल हो। तो मैंने बस इतनी सी बात करी कि इसको 20 मान लिया, तो 20 है यहाँ पर वेट, राइट। तो 20 इंटू 3, इस वाले वेट इस लाइन पे चलते हैं, तो 20 इंटू 3 कितना होगा 60। तो क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे जो 60 हो जाए, 15 इंटू 4 60। समझ में आया आई थिंक आपको, राइट। भैया है ना, क्या बोला, इधर 4 का मल्टीपल आएगा, इधर 5 का, तो 20 मान लिया। अब 20 का है ना, ये ऐसे हो गया, यहाँ पर 20 वेट है और इसकी लेंथ 3 है और यहाँ पे ये 4 है, तो इसका W2 निकालना है, वेट निकालना है। तो क्या बोला था मैंने, 20 का मल्टीप्लाई 3 के साथ शुड बी इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई W के साथ में, वेट बैलेंस करना है, राइट। तो ये 15 चौके 60, 20 या 60। सिमिलरली अगर मैं इसको देखता हूँ इस वाले लाइन सेगमेंट पे, तो 20 इंटू 7 है, हाँ ऐसे, ये 7 है, ये 20 है, तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 20 इंटू 7 140। तो इनका प्रोडक्ट 5 है, इसको हम वेट मान लेते हैं D, तो D इंटू 5, तो यहाँ पर 28 वेट आ जाएगा, राइट। तो टोटल अगर मैं बीच वाले पॉइंट पर वेट देखूंगा, हाँ यहाँ पर अगर आप कभी भी वेट देखते हैं बीच पे, तो ये वेट और वे वेट, है ना, जैसे मान लेते हैं इधर 20 kg है और इधर 30 kg है, तो जो यहाँ पे बैलेंस करेगा वहाँ पे 50 kg का वेट आएगा, 20 + 30, राइट। भाई ऐसे आपने तराजू तोली होगी, तो जितना वेट इधर है जितना वेट इधर है, तो टोटल वेट उतना ही आएगा ना दोनों को मिला के, राइट, सेम। तो 28 और 20 48 यहाँ पर वेट आ गया दोस्तों, हाँ यहाँ पर 48, और यहाँ से भी देखो 20 और 15 35, तो यहाँ पर 35 वेट है, यहाँ पर कितना वेट है 35, राइट। यहाँ पे 48 है और यहाँ पे है 35, राइट। अब इस वाली लाइन सेगमेंट पे देखो, यहाँ पर 48 वेट है, यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पर 13 होना चाहिए क्योंकि 48 बीच में है, तो बीच वाला जो वेट है इट शुड बी द सम ऑफ द एक्सट्रीम टू। तो ये 48 35 13, मतलब यहाँ पर 13 वेट है, राइट। अब देखो हर तरफ से चीज़ें बैलेंस है, 13 और 15 28 आ गया, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि आपको ये ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ई पॉइंट है। ए का लेंथ आपको दे रखा है 96 सेंटीमीटर, राइट। आपको ए ओ निकालना है या फिर आपको ओ ई निकालना है, ऑप्शन गलत है अगर ओ ई निकालना है, ठीक है। चलो मैं ओ ई निकाल देता हूँ, इसमें ऑप्शंस गलत है ओ ई के हिसाब से, राइट। देखो तो मैंने क्या बोला था, ये जो वेट है ये इधर जाएगा और ये जो वेट है इधर जाएगा, बिल्कुल। तो अगर मुझे ए ओ का रेशो ओ ई के साथ में देखना है, तो ए ओ के साथ में आएगा 35 और ओ ई के साथ में आएगा दोस्तों ये 13, तो इनका जो रेशो बनेगा 35:13, राइट। अगर आपको ओ ई निकालना है तो 13 टोटल है 48 इंटू 96, क्योंकि ए का एक्चुअल लेंथ 96 है, तो ये 26 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका आंसर तो वैसे 26 सेंटीमीटर आएगा ओ ई का लेंथ। और अगर आपको ए ओ निकालना है, ए ओ, तो ए ओ कितना आएगा 35/48 इंटू 96, तो इसका 70 सेंटीमीटर आएगा। तो बेसिकली जो ऑप्शन थे वो 70 के हिसाब से सेट कर रखे थे, तो इस वाले क्वेश्चन में ए ओ आपसे पूछा था, राइट। तो ए ओ के हिसाब से 70 सेंटीमीटर आंसर है। और ओ ई भी निकाल सकते, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ अगर मैं आपसे कल कोई सवाल पूछ देता हूँ कि इसमें आपको ए डी का रेशो सी डी के साथ में बताना है, तो कैसे बताएंगे, 15 ए डी के साथ में 15 जाएगा और सी डी के साथ में ये वाला वेट उठ के जाएगा, ऐसा। तो आप कोई भी रेशो निकाल सकते हैं दुनिया का ट्राइंगल के अंदर, इम्पॉर्टेंट है वेट बैलेंस या फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। एक बार रिकॉल करके देख लेना, बाकी डिटेल्ड जो लेक्चर है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ इसका, ठीक है। एक दोस्तों थ्योरम होती है लैडर थ्योरम,
तो अगर कभी भी इस तरह का कोई भी ट्राइंगल है जहाँ पे 4 टुकड़े हो रहे हैं इस तरह से, इसका एरिया फॉर एग्जांपल x है, ये y है, ये z है, और ABC इज अ टोटल ट्राइंगल, राइट। तो लैडर थ्योरम क्या बोलती है कि हाँ, टोटल ट्राइंगल लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्मॉल ए, तो 1 अपॉन द टोटल एरिया प्लस 1 अपॉन द दिस एरिया y शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पर ये एरिया x प्लस वाई प्लस यहाँ पर ये एरिया y प्लस जेड। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। लैडर थ्योरम है, इसी तरह के क्वेश्चन में आपको काम आती है अगर आपके पास ये एरिया गिवन है, राइट। दीज आर एरिया गिवन टू अस, राइट। बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। तो 1 अपॉन ए प्लस 1/40 शुड बी इक्वल्स टू 1/30 प्लस 40 70 प्लस 1/20 प्लस 40 60, राइट। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 35 छिक्के 110, 17 दिया 2 420, तो 7 6 42 और 6 7 42, तो 1/a प्लस 1/40 शुड बी इक्वल्स टू 13/420, राइट। तो यहाँ से दोस्तों a का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ से 13/420 माइनस 1/40 इक्वल्स टू 1/a। तो इसका भी एरिया अगर मैं मतलब एलसीएम 420 ले लेता हूँ तो ये 13 आ जाएगा, और 420 को अगर आप डिवाइड करोगे 40 से, हाँ 420 डिवाइड बाई 40, तो ये बनेगा 10.5 ना, 10 चौक 40, हाँ। तो ये बचेगा 2.5 अपॉन 420 इक्वल्स टू 1/a। तो a का वैल्यू आएगा 420 अपॉन 2.5, तो इंटू ये हो जाएगा अपॉन 2.5, तो इंटू 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 84 दूनी 168, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जो भी यूनिट स्क्वायर इसका आंसर है, तो 168, राइट। अगर मान लो कल को आपसे ये वाला एरिया पूछ देता, इसका एरिया x, तो x कितना आता है, टोटल 168 में से इसको माइनस कर देते, सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। सारे मजेदार क्वेश्चन है और सारे के सारे कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो दिस इज ए बी सी, और ये पॉइंट है आपके पास बी एफ, ये कॉन्करेंट है सीबीएंस, राइट, ई और डी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब पुरानी वीडियोस में कि अगर आपके पास सीबीएन कॉन्करेंट होते हैं तो ऊपर वाले एओ और टोटल लेंथ ए प्लस बीओ और टोटल लेंथ बी एफ प्लस सी ओ और टोटल लेंथ सी डी, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में चलता है। दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट यूज कर लो, 2/3। भाई सेंट्रोइड में क्या होता है, मान लो ये अगर ये सेंट्रोइड होता तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो ये 6/3 के हिसाब से 2:1 आता है। तो सेंट्रोइड के हिसाब से याद कर लो 2/1, दैट इज वो 6/3 बन जाएगा, राइट। तो सेंट्रोइड की भी बात अगर आपको पता है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखो बस आपको दे रखा है ये AO अपॉन OE, तो अगर ये AO 7 है ना, ये 7 है, और OE आपको 5 दे रखा है, तो टोटल हो जाएगा 12, प्लस BO आपको दे रखा है नहीं पता, BF भी नहीं पता, प्लस CO दे रखा है 4, और OD ये 4 दे रखा है, OD दे रखा है 3, तो ये 4/7 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से BO अपॉन BF हो जाएगा 2 माइनस 4/7 माइनस 2/12। इनका एलसीएम ले लेते हैं 84, तो 84 दूनी 168 और 12 सत्ते 84, 12 चौके 48 और 12 चौके 48 और 4 दूनी 8, तो ये बनेगा 120 112/84, तो 28 चौके 112, 28 दिया 84, 4/3। कुछ ना कुछ एरर है क्या, 112/84। अच्छा यहाँ पे 7/12 आएगा ना, ओहो, यहाँ पे 7/12 भाई, ये 7/12, ठीक है।
तो 84 इंटू 168 माइनस ये 7 12 चौके 48 और यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो 120 माइनस 28 अपॉन 84 तो बनेगा कितना 92 अपॉन 84। तो 2 से 46, 2 से 42 और 2 से 23 और 2 से 22। अभी भी कुछ एरर लग रहा है मुझे। तो 7 अपॉन 12, 4 अपॉन 7, 12 सत्ते 84, 84 तो नहीं 168, 7 चौक 12 सत्ते 84, 12 चौके 48 माइनस 12 चौक 48। अच्छा 12 सत्ते 84, ओहो भाई 12 सत्ते 84, 7 सत्ते 49, बहुत ही गड़बड़ हो गया। तो 120 माइनस 49 अपॉन 84। तो अभी कितना बनेगा ये 20, 49 माइनस करना 69, 71 अपॉन 84। तो बी ओ का रेशो आपको निकालना ओ एफ के साथ में। तो ये बी और ये जो लेंथ आ रही है ये बी ओ अपॉन बी एफ आ रही है। तो बी ओ इसका मतलब 71 है और फिर ये 13 हो जाएगा ना। टोटल लेंथ आपके पास बी एफ की 84 है ना भाई। बी एफ की लेंथ 84 है 84 और ये वाला जो पोर्शन है 71 है तो इसको 13 होना पड़ेगा ना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोई फीडबैक है कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट करिए। और अब ये 40-45 दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मेहनत करनी है आपको और मैं भी मेहनत यहाँ से आपके लिए करूँगा सो दैट आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू सब्सक्राइब 1 Prep 99।